ಶರಣು ಹೋಗಬೇಕು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ನಿರಗುಣರು ಗುರು ಸಗುಣರು, ಸಗುಣ ನಿರ್ಗುಣವು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಗುರು ಆತ್ಮಾನಂದ, ನಿಜಾನಂದ ಪಡೆಯಿರಿ ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಪರಮ ತತ್ವ ಗುರು ಪರಮ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಸಮಾಧಿ ಸುಖವು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ತತ್ವ ವಂದೇ ಗುರು ರೂಪ ಹಲವು, ದೃಢ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಾವವು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪ ಶಿವ ಹರಿ ಸ್ವರೂಪ, ನತಮಸ್ತಕರಾಗಬೇಕು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಆನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಗುರು ತ್ರಿಗುಣ ಮೂರ್ತಿ, ನಿಜ ಸಮಾಧಾನವು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಧರ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಗುರು ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿ, ಮಂಗಲ ಕೀರ್ತಿ ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಮಹಾಯೋಗಿ ಗುರು ಮಹಾತ್ಯಾಗಿ, ರಿದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಕಲ್ಪತರು ಗುರು ಭವತಾರು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸುಖವು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಬೋಧಿಸುವರು ಗುರು ಪ್ರೇಮಿಸುವರು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವವು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಗುರು ಬೋಧಾಮೃತ, ನಾಮಾಮೃತದ ಸವಿಯು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ತಾಪ ಹರಿಸುವರು ಗುರು ಭಯ ಹರಿಸುವರು, ಪ್ರಪಂಚ ಸುಖವಾಯಿತು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಪಾಪ ಹರಿಸುವರು ಗುರು ದೋಷ ಹರಿಸುವರು, ಮೋಕ್ಷವು ಪಡೆಯಿರಿ ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಗುಣಾತೀತರು ಗುರು ಭಾವಾತೀತರು, ಮಾಯಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರು ಗುರು ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧರು, ನಿತ್ಯ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವವು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಗುರು ಸರಸ್ವತಿ, ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮವು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಗುರು ಚಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶವು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ.
संत सज्जन गुरु सहज जीवन उत्तम गतियु गुरु चरणದಲ್ಲಿ गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा शांति दया करुणे गुरु चरणದಲ್ಲಿ गुरु परम दयाळु गुरु परम कृपाळु नाल्कु मुक्तिಗಳು गुरु चरणದಲ್ಲಿ गुरु तीर्थ स्थान गुरु पवित्र स्थान उत्तम निज स्थान गुरु चरणದಲ್ಲಿ गुरु शुद्ध स्वरूप गुरु साक्षी स्वरूप सर्वस्व अर्पिಸಿರಿ गुरु चरणದಲ್ಲಿ गुरु शरणु ಹೋಗಿ गुरु चरण ಸ್ಮರಿಸಿ ಅನನ್ಯ ಭಾವದಿಂದ गुरु ಚರಣದಲ್ಲಿ गुरु परमेश्वर गुरु सर्वेश्वर सर्वस्व अर्पिಸಿರಿ गुरु चरणದಲ್ಲಿ गुरु महापुरुष गुरु सत्पुरुष ಶರಣು ಹೋಗಿರಿ गुरु ಚರಣದಲ್ಲಿ गुरु महातपस्वी गुरु महातेजस्वी जप तप ಸಾಧನವು गुरु ಚರಣದಲ್ಲಿ गुरु साधु स्वभाव गुरु शांत स्वभाव ಶರಣು ಹೋಗಿರಿ गुरु ಚರಣದಲ್ಲಿ गुरु साधु जीवन गुरु संजीवन संजीवन नामವು गुरु ಚರಣದಲ್ಲಿ गुरु कर्मयोगी गुरु ज्ञानयोगी अष्टांग ಯೋಗವು गुरु ಚರಣದಲ್ಲಿ गुरु बृहस्पति गुरु वाचस्पति नित्य पारायण गुरु ಚರಣದಲ್ಲಿ गुरु चैतन्य मूर्ति गुरु प्रसन्न मूर्ति ಇರಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ गुरु ಚರಣದಲ್ಲಿ गुरु दीनवत्सल गुरु शरणागत वत्सल धन तनु मनವು गुरु ಚರಣದಲ್ಲಿ गुरु दयानिधि गुरु करुणानिधि निसंदेह भावविरली गुरु ಚರಣದಲ್ಲಿ गुरु बाल स्वभाव गुरु गंभीर स्वभाव आनंद भावವು गुरु ಚರಣದಲ್ಲಿ गुरु साधु स्वभाव गुरु
स्वभाव मुग्ध भाव गुरुचरणದಲ್ಲಿ गुरु जगद्गुरु गुरु सद्गुरु विशुद्ध भक्ति इरली गुरु चरण उसको पहले लगा गुरु साक्षात्कारी गुरु परोपकारी अनंत पुण्यभू गुरु चरणದಲ್ಲಿ गुरु निजानंद गुरु सच्चिदानंद परम आनंदभू गुरु चरणದಲ್ಲಿ गुरु शांति दूत गुरु देवदूत शांत स्वभावभू गुरु चरणದಲ್ಲಿ गुरु स्वाभिमानी गुरु निरभिमानी अभिमान अಳಿಯುವುದು गुरु चरणದಲ್ಲಿ गुरु ब्रह्मनिष्ठ गुरु कर्तव्यनिष्ठ एकनिष्ठ भावविरली गुरु चरणದಲ್ಲಿ गुरु अविनाशी गुरु अधिकारी दृढ़ विश्वास विरली गुरु चरणದಲ್ಲಿ गुरु एकनाथ गुरु दीनानाथ शरणु गिरी गुरु चरणದಲ್ಲಿ गुरु कोमल हृदय गुरु कोमल चरण निर्मल मनभू गुरु चरणದಲ್ಲಿ गुरु स्मरिಸುವರು गुरु कीर्तिಸುವರು निर्मल चित्तभू गुरु चरणದಲ್ಲಿ गुरु आत्माराम गुरु पूर्ण काम नाल्ಕು ಧಾಮಗಳು गुरु चरणದಲ್ಲಿ गुरु तत्वदर्शी गुरु समदर्शी शरणु ಹೋಗಬೇಕು गुरु चरणದಲ್ಲಿ गुरु धर्मात्मा गुरु पुण्यात्मा भगवद ज्ञानभू गुरु चरणದಲ್ಲಿ गुरु गुणनिधि गुरु कृपानिधि शरणु ಹೋಗಬೇಕು गुरु चरणದಲ್ಲಿ गुरु सत्वशील गुरु विनयशील शरणु ಹೋಗಬೇಕು गुरु चरणದಲ್ಲಿ गुरु अवतारी गुरु लीलाधारी निश्चिंत रागिरी गुरु चरणದಲ್ಲಿ गुरु सत्यवचन गुरु अमृतवचन बोध
ಮಂಥನ ಮಾಡುವರು ಗುರು ಕೀರ್ತನ ಮಾಡುವರು ಮನೋವ್ಯಥೆ ಹೋಗುವುದು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಪರಮ ಉದಾರ ಗುರು ಪರಮ ಆಧಾರ ಶರಣು ಹೋಗಬೇಕು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಬಲಶಾಲಿ ಗುರು ವೈಭವಶಾಲಿ ನಿತ್ಯ ಉಪಾಸನೆಯು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ರಕ್ಷಿಸುವರು ಗುರು ಧೈರ್ಯ ನೀಡುವರು ಶರಣು ಹೋಗಬೇಕು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಗುರು ದೇಹ ಪವಿತ್ರ ನಿಷ್ಕಾಮ ಸೇವೆಯು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಜ್ಞಾನದಾತ ಗುರು ಅನ್ನದಾತ ನಿತ್ಯ ಸೇವೆಯು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಪ್ರಸನ್ನ ಮುದ್ರೆ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತವಿರಲಿ ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ತತ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರು ತತ್ವ ಪವಿತ್ರ ಗುರು ತತ್ವ ಅರಿಯಿರಿ ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಅಮೃತವಾಣಿ ಗುರು ಭಗವದವಾಣಿ ಭವಸಾಗರ ದಾಟಿರಿ ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಅಧ್ಯಾಪಕ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಳಿಯುವುದು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಅನುರಾಗಿ ಗುರು ವೈರಾಗಿ ರಾಗದ್ವೇಷ ತ್ಯಾಗಿರಿ ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಗುರು ಪರಮಾರ್ಥಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವವು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯ ಗುರು ವರ್ತಮಾನ ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನವು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಕಠೋರ ಸ್ವಭಾವ ಗುರು ಕೋಮಲ ಸ್ವಭಾವ ಅನನ್ಯ ಭಾವವು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಅಮೃತ ನುಡಿ ಗುರು ಹರಿ ನುಡಿ नहीं तो फिर से ऑन करेंगे। अमृतानुभवವು गुरु चरणದಲ್ಲಿ. खाली अभी वो ऑप्शन उसमें देखना पड़ेगा। गुरु हरिदास गुरु हरि भक्त हरि भक्ति इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन रखिए कि जब चाहें तब गुरु चरणा से तो चरणದಲ್ಲಿ. संगीत ही चलता रहे। गुरु दैवी शक्ति गुरु इच्छा शक्ति अनंत शक्तियು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಗುರು ಅಗೋಚರ
दृढ है क्या? आज डालना पड़ेगा क्योंकि आत्मोन्नतियु दुकान में ध्यान देना गुरुचरणदल्ली गुरु महिमे अगाध गुरु कार्य अगाध कीर्तनवु ಮಾಡಿರಿ गुरु चरणದಲ್ಲಿ गुरु सर्वव्यापक दिखता है क्या इनका? गुरु सर्वसमर्थ माइक नित्य इधर देना पड़ेगा। प्रार्थनेयु गुरु चरणದಲ್ಲಿ हाँ तो यहाँ से पकड़ लेगा। गुरु समाधानी थोड़ा दूर से करेंगे तो इन लोगों का भी दिखेगा। सावधानी माइक दे सर्व दीजिए पहले। सिद्धियु कहाँ तक आता है? गुरु चरणದಲ್ಲಿ माइक और नंबर लेना पड़ेगा। गुरु परम दैवत गुरु आराध्य दैवत दैवी संपत्तु गुरु चरणದಲ್ಲಿ गुरु चित्पावन गुरु पतित पावन निरंतर ध्यान विरली गुरु चरणದಲ್ಲಿ गुरु वेद प्रमाण गुरु अनुभव प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण गुरु चरणದಲ್ಲಿ गुरु चिंतामणि गुरु पारसमणि जीव कल्याण गुरु कई उच्चारण आप भी जरूरत करते हैं। चश्मा बाहर ही है ना, लैपटॉप के पास होगा। गुरु दिव्य रूप गुरु दिव्य स्वरूप नित्य रूप ध्यान कपूर कम है क्या? गुरु चरणದಲ್ಲಿ इतना ऊंचा करोगे ना तो नहीं जलेगा। गुरु तो नहीं धर्म जलेगा। द्वार गुरु मोक्ष हाँ छोटा छोटा रखना पड़ेगा तो लौ ऊपर उठेगा ना। बड़ा में लौ नहीं जाएगा ऊपर। चरणದಲ್ಲಿ गुरु नहीं जाएगा। निरंजन गुरु दिव्यांजन प्रेमांजन पडेगिरी गुरु चरणದಲ್ಲಿ गुरु महिमे असीम गुरु कृपे असीम असीम श्रद्धेयु गुरु चरणದಲ್ಲಿ घी डाली है ना इसमें? गुरु जीव घी डाल के रखी है ना कपूर? गुरु नहीं मालूम? जड़ तारक भव भय हरण गुरु चरणದಲ್ಲಿ नीचे जाओ और मेरे इंस्ट्रक्शन दे दो तो नीचे पानी गिरा करके आवाज नहीं करेगा। गुरु अज्ञान हरिसुवरु अद्वैत ज्ञानमु गुरु चरणದಲ್ಲಿ गुरु पाश कडियुವರು गुरु भाव जोडिಸುವರು आत्मोद्धारವು गुरु चरणದಲ್ಲಿ गुरुवे साधन गुरुवे समाधान परम शांतियु गुरु चरणದಲ್ಲಿ गुरु निवृत्ति मार्ग गुरु प्रवृत्ति मार्ग आनंद मार्गವು गुरु चरणದಲ್ಲಿ हम लोग भी यज्ञ कर रहे हैं 9 बजे से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना से बचने के लिए। गुरु सेवे ಮಾಡುವರು ಗುರು ದಾನ ಮಾಡುವರು ಅನನ್ಯ
सेवा भाववु गुरु चरणदन्नी गुरु प्रातः स्मरण गुरु प्रातः दर्शन प्रातः ध्यानवु गुरु चरणदन्नी गुरु दर्शन दुर्लभ गुरु दर्शन सुलभ दर्शनद प्राप्तियु गुरु चरणदन्नी गुरु अभेद भाव गुरु अभेद दृष्टि भेदाभेद अळियुವುದು गुरु चरणदन्नी आज ये कौन सा है? पार्ट 4। गुरु हरि बुद्धि पांचवा है। गुरु समबुद्धि मन बुद्धि अर्पिसिरी गुरु चरणदन्नी गुरु सत्य वचन गुरु शुद्धाचरण दृढ संकल्पवु गुरु चरणदन्नी नहीं, इसको तो पूरा होना चाहिए। कितना है अभी? 2 महीना पूरा होने चाहिए। कितना? गुरु आज्ञा पालन अभी 5 मिनट्स होगा। धर्म पालन बीच में भी दुख निवारणे गुरु चरणदन्नी 5:05 में गुरु वंदना समाप्त गुरु होने के बाद उपदेशी सुवरु गुरु क्षमी सुवरु शरणु ಹೋಗಬೇಕು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ ಗುರು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುವರು ಗುರು ಮನವಿ ಮಾಡುವರು ಶರಣು ಹೋಗಬೇಕು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ गुरु हरि स्मरणे गुरु हरि दर्शन नित्य नाम स्मरणे गुरु चरणदल्ली गुरु द्वन्द्वातीत गुरु कालातीत निष्काम भाववु गुरु चरणदल्ली गुरु सगुण ध्यान गुरु निर्गुण ध्यान ध्यान धारणेयु गुरु चरणदल्ली गुरु सर्वाघटित गुरु देहादेहियु हरि चिंतन इरली गुरु चरणदल्ली गुरु हरि चिंतन गुरु निधिध्यासन ईश्वर प्रणिधानवु गुरु चरणदल्ली गुरु मंत्र अगाध गुरु सामर्थ्य अगाध श्री यश ज्ञानवु गुरु चरणदल्ली गुरु आशीर्वचन गुरु अमृत वचन शुभाशीर्वादवु गुरु चरणदल्ली गुरु सुकुमार गुरु कृपे
चरणದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಜ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದು. ಶರಣು ಹೋಗಬೇಕು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಶರಣು ಹೋಗಬೇಕು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಶರಣು ಹೋಗಬೇಕು ಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. और आगे आगे मेरे ख्याल से गरी के आगे रखिए, पूरा आगे रखिए, पीछे ही करना पड़ेगा। ये लोग नहीं दिखा। पूरा 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 से हाँ चलिए। हाँ हाइट से स्टैंड को थोड़ा हाइट रखिए। बस बस कोरोना आपदा से संबंधित लाइव का यह 5वां चरण है जो पंच महाभूत पूजा को समर्पित है। पिछले बार कई जगसिद्धों ने एक विचार दिया था कि पंच महाभूत पूजा जो मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ और कई लाभ देता है, इसकी पूर्ण विधि को हम दिखाएं। तो यह जो सत्र है वह पंच महाभूत पूजा को समर्पित है, जिसमें होम यज्ञ के पूर्ण विधि को बताते हुए आज इस क्रिया को करेंगे। हमारा मनुष्य शरीर 9 खंडों से बना हुआ है, जिनमें 5 भौतिक खंड हैं, 3 ऊर्जा खंड हैं और संचालन के लिए आत्मा है। 5 भौतिक खंड हैं, जिनमें भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। 3 ऊर्जा खंड हैं, जिनसे 5 महाभूत से निर्मित शरीर में गति उत्पन्न होती है। उनमें ब्रह्म ऊर्जा, विष्णु ऊर्जा और शिव ऊर्जा है। शिव ऊर्जा हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करने वाली ऊर्जा है, बाहरी प्रकोप से शरीर को बचाने वाली ऊर्जा है।
विष्णु ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर के सभी अंगों को संचालित रखती है, संतुलित रखती है। ब्रह्म ऊर्जा हमारे शरीर में, मन में चेतना, करुणा, दया, वात्सल्य जैसे भावों को उत्पन्न करने वाला है। विष्णु और शिव ऊर्जा के बीच समन्वय स्थापित करने वाला है। 5 महाभूत और 3 ऊर्जाओं से निर्मित इस शरीर का संचालन आत्मा रूपी चालक के हाथ में है। इसे जोड़कर देखा जाए तो हमारा शरीर दृश्य वाला और अदृश्य वाला दोनों मिलाकर के 9 खंडों में बटा हुआ है। इन 9 खंडों को आपस में एक दूसरे के साथ गहराई के साथ जोड़ देना ही योग है। इस योग की क्रिया को सरलता पूर्वक करने का माध्यम गाय है। गाय और गव्यों के माध्यम से हम इन सभी खंडों को सरलता पूर्वक जोड़कर शरीर को संतुलित कर सकते हैं। बाहरी प्रकोप, परजीवी, वायरस आदि से बचा करके रख सकते हैं। इसी की यह क्रिया है जिसे गवसिद्ध नियमित रूप से प्रातः 5 बजे करते हैं। इस क्रिया में विशेष ध्यान स्वर का रखा जाता है, क्योंकि यह पूरा संसार स्वर रूपी तरंग से बना हुआ है। भूमि तत्व को तोड़ते चले जाएं तो यह जल में बदल जाता है। जल तत्व को तोड़ते चले जाएं तो यह अग्नि तत्व में बदल जाता है। अग्नि तत्व को तोड़ते चले जाएं तो यह वायु तत्व में बदल जाता है। वायु तत्वों को अगर तोड़ते चले जाएं तो यह आकाशीय तत्व में बदल जाता है। आकाशीय तत्व को तोड़ दें फिर यह ब्रह्म ऊर्जा में बदल जाती है और इसके बाद फिर इसका स्वरूप तरंगीय हो जाता है। यह पूरा संसार, पूरी दुनिया और जो चीज़ें दिख रही है हमारी आँखों के सामने और जो नहीं दिख रही है, यह सभी वास्तव में तरंग हैं। जो दिखता है वह कल्पना है। इसीलिए जो कुछ भी संसार दिखने वाला है इसे हमारे योगियों ने माया कहा। यह माया है, माया रूपी दुनिया है और इस माया रूपी में दुनिया में माया रूपी शरीर लेकर के हम हैं। अंततः सब कुछ तरंग है और ऊर्जाएं हैं। इन्हीं ऊर्जाओं को संतुलित करने का यह सरल माध्यम गाय है और गाय के गव्यों के आधार पर किया गया यज्ञ, साधना और पूजा पंच महाभूत पूजा है। पिछले महीने पंचगव्य गुरुकुलम का शुभारंभ हो गया और इस गुरुकुलम में सर्वप्रथम 2 बालिकाओं का नामांकन हुआ है। ये रचना गुंडा और सुयना गुंडा। ये दोनों बच्चियां गुरुकुल में नामांकन ले चुकी है। इनकी शिक्षा और संस्कार का कार्यक्रम नियमित रूप से चालू है। तो आज इन दोनों बच्चियों को साथ में लेकर पंच महाभूत पूजा हम शुभारंभ करेंगे। इस साधना में गाय के गव्यों की भूमिका होती है और पंच महाभूतों की भूमिका होती है। गाय का गव्य, जिसमें गोमय शुद्ध भूमि तत्व है, इस शुद्ध भूमि तत्व के रूप में हमने गोमय के कंडे को रखा है। दूसरा महाभूत जल है, इस कुंड में हमने जल को रखा है। तीसरा महाभूत अग्नि है, जिसे हम घृत के माध्यम से दीप प्रज्वलित कर उत्पन्न करेंगे। चौथा महाभूत वायु है, जो हमारे बीच उपलब्ध है और खुले आकाश में इस साधना को की जा रही है तो आकाश की उपस्थिति है। 5 गव्यों की यहाँ पर उपस्थिति है और तीनों ऊर्जाएं हमारे शरीर में है और इस साधना से उत्पन्न होंगी। हमारी आत्मा
जो विवेक को संचालित करने वाला है, उसके माध्यम से इस क्रिया को आरंभ करेंगे। कुछ पात्रों की जानकारी दे दूं इसमें। तो ये छोटा सा अग्निहोत्र कुंड है जिसमें गोमय और घृत रखी हुई है, थोड़ा सा शुद्ध कपूर रखा हुआ है अग्नि प्रज्वलित करने के लिए। तुम घसको मत, तुम यहाँ पर बैठो सुनसलीना के सामने, वहाँ मत देखो, तुम नाच रही हो, यहाँ बैठो इसके सामने। थोड़ा सा घुमा दीजिए या थोड़ा दूर कर दीजिए। हाँ बस। आरती के लिए एक दीपक है इस प्रकार का, आप रख सकते हैं। और ये तीर्थ है जिसमें जल, तुलसी के पत्ते और शुद्ध कपूर है। प्रसाद के रूप में जैविक गुड़ है या जैविक अनाजों से बने हुए किसी पकवान को भी रख सकते हैं। इन दो पात्रों में पंचगव्य है, समभाग में गोमय, समभाग में गोमूत्र, दूध, दही और घृत का मिश्रण है। यह समभाग से तैयार किया गया पंचगव्य है। इतनी केवल वस्तुओं की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। जल में आप ब्रह्म ऊर्जा के रूप में पुष्प को आप इसमें डाल सकते हैं, तैरा सकते हैं। तो केवल इतनी ही वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। सर्वप्रथम इस शिष्ट को चलाने वाले सूर्य से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि को स्वर के साथ उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। सूर्य अपनी गति पर घूमते हुए, चक्कर लगाते हुए ओंकार का उच्चारण करते हैं। सूर्य से उत्पन्न ओंकार का जो नाद है, इसी नाद को हम स्वर के साथ उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। श्वास भर लें, फेफड़े को पूरी तरह फुला लें और श्वास छोड़ते हुए एक लंबी नाद से ओंकार का उच्चारण करेंगे। इसमें स्वर की महत्ता है। स्वर से जो उत्पन्न नाद है, इस नाद से ही ब्रह्म ऊर्जा जागृत होती है, इसलिए इसे स्वर के साथ करेंगे। फेफड़े में हवा भरें और छोड़ते हुए ओंकार का नाद सभी करेंगे। इसके बाद गायत्री छंद का उच्चारण 5 चरणों में स्वर के साथ करेंगे, जिसमें पहला चरण है ओंकार का, दूसरा चरण में श्वास लेकर छोड़ते हुए, इसका तीसरा चरण वायु मुक्त फेफड़े के साथ यानी बिना श्वास के साथ, चौथे चरण में फिर श्वास लेकर छोड़ते हुए
और 5वें चरण में खाली फेफड़े के साथ। इस प्रकार से 5 बार गायत्री छंद का आह्वान स्वर के साथ करेंगे। आप लोग कोई मत बोलो, केवल सुनो। आज फिर से करेंगे। भूर्भुवः स्वः
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छंद पूर्ण हुआ। इसी के साथ दीप प्रज्वलित कर लें। इसके बाद गौ नमस्कार मंत्र का जाप करेंगे। हमारे शास्त्रों में गौ नमस्कार के 2 दर्जन से ज़्यादा सूक्त हैं। उसमें से एक सूक्त जिसमें गाय और उसके वंश की पूरी व्याख्या है, इसको नमस्कार के रूप में गाएं। इसे भी स्वर के साथ करने का अभ्यास करें। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभ्यः एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्चभ्यः पवित्राभ्यो नमो नमः। सर्वे काम दूधे देवी सर्वतीर्थाभिषेचिनी पावनी सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः। नमो गोभ्यः अर्थात गाय और उसका वंश पूरा नमन करने योग्य। श्रीमतीभ्यः जैसे हम अपने घर की माताओं को, बड़ी बहनों को और सभी सम्मानीय नारियों को श्रीमती के साथ संबोधित करते हैं, वैसे ही गाय को भी श्रीमती, तिरुमती के साथ संबोधित करना चाहिए। सौरभ्यः एव च, यह हमारी गाय और उसका वंश पूरी तरह से सूर्य की प्रतिनिधि है, सूर्य का छोटा स्वरूप है। जिस प्रकार से इस सौरमंडल में सभी प्रकार के महाभूत और ऊर्जाओं को देने वाले सूर्य नारायण हैं, उसी प्रकार से हमारी गाय भी सभी महाभूतों को और ऊर्जाओं को प्रदान करने वाली बिल्कुल सूर्य की तरह, सूर्य की प्रतिनिधि की तरह हमारे बीच में उपस्थित है। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्चभ्यः, जिस प्रकार से यह पूरी सृष्टि ब्रह्म ऊर्जाओं से बनी हुई है, उसी ब्रह्म ऊर्जा की यह पुत्रियां गाय है। पवित्राभ्यो नमो नमः, इसलिए इस पवित्र गाय को जो है हमें बार बार नमस्कार करना चाहिए। सर्वे काम दूधे देवी, यह देवी रूपी गाय मनुष्य जीवन के सभी कामों को कर देने वाली है। जो कार्य प्रकृति के संतुलन का जो कार्य हम नहीं कर सकते हैं, अपने शरीर के संतुलन की जो क्रिया हम नहीं कर सकते हैं, हमारे बदले यह हमारी गाय उन सारी क्रियाओं को कर देती है। सर्वे काम दूधे देवी सर्वे तीर्थाभिषेचिनी, और दुनिया में जितने भी तीर्थ भूमि हैं, इन तीर्थ भूमियों पर तीर्थ यात्रा करने का जो कुछ भी फल होता है, यह सारा फल गाय की परिक्रमा से मिल जाता है। गाय के पास सभी तीर्थों का पुण्य है। पावनी सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः, इसलिए इस जगत की सबसे श्रेष्ठ प्राणी गाय, तुम्हें हम कोटि कोटि बार नमन करते हैं। इसके बाद कैसे करेंगे? स्वर के साथ करेंगे। गायत्री छंद के उच्चारण के साथ हमने ब्रह्म ऊर्जा को जागृत करने का प्रयास किया। अब 11 बार महामृत्युंजय का जाप स्वर के साथ करके और शिव ऊर्जा को जागृत करने का अभ्यास करेंगे। शिव ऊर्जा हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता वाली ऊर्जा है। इसे स्वर के साथ करें। इसमें ध्यान रखना है कि महामृत्युंजय के साथ जो ओंकार का जो नाद है वह सूक्ष्म नाद होता है। तो सूक्ष्म नाद के साथ ओंकार का उच्चारण करते हुए इसे आरंभ करेंगे और इसी के साथ कुंड में जो भूमि तत्व है उसमें
अग्नि तत्व जागृत करें। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
लंबे स्वर के साथ करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। इस प्रकार से यह जाप पूर्ण हुआ। शिव ऊर्जा को जागृत करने का हमने अभ्यास किया है। इसके बाद हमारे वेदों में गौरक्षा के बहुत सारे सूक्त हैं, जिसमें मत है कि इन सूक्तों का उच्चारण अगर भारतवर्ष में बहुत लोग करें तो इससे उत्पन्न जो तरंगे हैं यह भारत भूमि पर निवास करने वाले सभी लोगों के मन में गौरक्षा का भाव उत्पन्न कर सकता है। तो इसे भी हम स्वर के साथ गाएंगे। नमो भगवते त्र्यंबकाय उपशमयोपशमय चुलु चुलु मिली मिली भिदि भिदि गोमानिनी चक्रिणी हूँ फट अस्मणि ग्राम गोकुलस्य रक्षां कुरु कुरु शांति कुरु कुरु घंटाकर्णो महासेनो विरह प्रोक्तो महाबलः मारी निर्णासन करः समापातु जगदुत्पत्ति। नमोस्तु धेनवे च नमः सुरभ्यो सकत्यो नमः सर्वजगज्जननयो देव्यो जग्नदक्ष तत्परायो सुधार्णवायो च नमो नमस्ते। इन सूक्तों को स्वर के साथ जब हम उच्चारण करते हैं तो इस स्वर के साथ जो तरंगे उत्पन्न होती है, ये तरंगे दूर दूर तक निवास करने वाले भारत के लोगों के मन में गौरक्षा का भाव जागृत करता है। यह सारी क्रियाएं मनुष्य जीवन में सुख के लिए, समृद्धि के लिए और ऐश्वर्यता के लिए की जाती है। गाय के पास, गौमाँ के पास देने के लिए 109 वरदान हैं। अतः हम मनुष्य सुख, समृद्धि, संपदा और ऐश्वर्यता के लिए, निरोगी जीवन के लिए गौ माँ से 109 आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो प्रत्येक आशीर्वाद के साथ जो है आहुति करेंगे और आहुति के अंत में जो पास में सभी बैठे हैं, यह आप लोग दो स्वर उत्पन्न करेंगे, जिसमें दोनों स्वर में सांस छोड़ने की क्रिया होती है। स्व हा, स्वाहा नहीं कहेंगे। इसमें दो क्रियाएं हैं। स्व जिसमें जो है फेफड़े से वायु निकल जाता है, और इसके बाद हा, तो जो रिजर्व वायु है फेफड़े के अंदर, इसको भी हा उच्चारण के साथ निकाल देते हैं। तो यह छोड़ने की क्रिया है, त्याग की क्रिया है। इसे प्रतिदिन करने के बाद मनुष्य त्याग को धारण कर लेता है। धीरे धीरे जीवन में हर चीज़ को वह छोड़ने का अभ्यासी हो जाता है। इसलिए इसमें प्रत्येक आहुति के साथ स्व हा का उच्चारण करेंगे। तुम लोग साथ में जाना, ठीक है? और आहुति ले लो। हाँ। ओम गवे नमः स्वाहा स्वाहा। ओम धेनवो नमः स्वाहा। ओम सुरभ्यो नमः स्वाहा। ओम मात्रे नमः स्वाहा। ओम वत्सलायो नमः स्वाहा। ओम अघन्यायो नमः स्वाहा। ओम पैश्विन्यो नमः स्वाहा।
ओम पवित्राय नमः स्वाहा ओम श्रीमत्यो नमः स्वाहा ओम सौम्याय नमः स्वाहा ओम सच्चिदानंद स्वरूपिण्यो नमः स्वाहा ओम रोहिण्यो नमः स्वाहा ओम कपिलाय नमः स्वाहा ओम नंदाय नमः स्वाहा ओम पुण्याय नमः स्वाहा ओम गंधवहाय नमः स्वाहा ओम शुच्यो नमः स्वाहा ओम श्यामाय नमः स्वाहा ओम सनातनाय नमः स्वाहा ओम प्राणाय नमः स्वाहा ओम सुभगाय नमः स्वाहा ओम सर्वरूपिण्यो नमः स्वाहा ओम अनंताय नमः स्वाहा ओम अनंत संपूज्याय नमः स्वाहा ओम अनंत क्षीरदायिन्यो नमः स्वाहा ओम अशेषाघराय नमः स्वाहा ओम नित्याय नमः स्वाहा ओम नित्य गोलोकवासिन्यो नमः स्वाहा ओम हव्य कव्य प्रदाय नमः स्वाहा ओम शुद्धाय नमः स्वाहा ओम कामधेनवो नमः स्वाहा ओम सुधार्णवाय नमः स्वाहा ओम भव दुख हर छिराय नमः स्वाहा ओम वृंदावन समुद्र भवाय नमः स्वाहा ओम सबलाय नमः स्वाहा ओम अजसुताय नमः स्वाहा ओम दिव्याय नमः स्वाहा ओम श्रुतिरूपाय नमः स्वाहा ओम समुद्रजाय नमः स्वाहा ओम श्रुतिसिद्धाय नमः स्वाहा ओम जगन्मात्रेय नमः स्वाहा ओम पद्मशाय नमः स्वाहा ओम चारुरूपिण्यो नमः स्वाहा ओम चतुर्वर्ग प्रदाय नमः स्वाहा ओम अवंगाय नमः स्वाहा ओम सर्वावय शोभनाय नमः स्वाहा ओम पराय नमः स्वाहा ओम आपराय नमः स्वाहा ओम वरिण्याय नमः स्वाहा ओम श्री सीताराम परम पूजिताय नमः स्वाहा ओम श्री राधा कृष्ण प्रियाय नमः स्वाहा ओम मान्याय नमः स्वाहा ओम माध्यो नमः स्वाहा ओम क्षीर सरोवराय नमः स्वाहा ओम कल्याण्यो नमः स्वाहा ओम माधव्यो नमः स्वाहा ओम शोभाय नमः स्वाहा ओम सुशीलाय नमः स्वाहा ओम शुभलक्षणाय नमः स्वाहा ओम अदित्यो नमः स्वाहा ओम नंदियो नमः स्वाहा ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम समंगाय नमः स्वाहा ओम यज्ञकारणाय नमः स्वाहा ओम मनोरमाय नमः स्वाहा ओम अमृतनाभ्यो नमः स्वाहा ओम वशाय नमः स्वाहा ओम श्री विष्णुपद स्थिताय नमः स्वाहा ओम भयघ्नयो नमः स्वाहा ओम बहुलाय नमः स्वाहा ओम दुग्धाय नमः स्वाहा ओम मंगलाय नमः स्वाहा ओम बहुदुहिन्यो नमः स्वाहा ओम ऊर्जस्विन्यो नमः स्वाहा ओम महादेव्यो नमः स्वाहा ओम शरणाय नमः स्वाहा ओम शुभदर्शनाय नमः ओम आदित्य भगिन्यो नमः स्वाहा ओम रुद्रमात्रिये नमः स्वाहा ओम वशुसुताय नमः स्वाहा ओम अमृताय नमः स्वाहा ओम चतुष्पादिवृत्ताय नमः स्वाहा ओम धर्मस्वरूपाय नमः स्वाहा ओम पितृतारिकाय नमः स्वाहा ओम शुभाननाय नमः स्वाहा ओम शुभाय नमः ओम शांत्यो नमः स्वाहा ओम चारुशृंगाय नमः स्वाहा ओम कर्षिण्यो नमः स्वाहा ओम गलकम्बलवत्यो नमः स्वाहा ओम पूज्याय नमः स्वाहा ओम पुछिन्यो नमः स्वाहा ओम बहुरूपिण्यो नमः स्वाहा ओम अर्जुन्यो नमः स्वाहा ओम उस्राय नमः स्वाहा ओम
ओम महेयो नमः स्वाहा ओम बुद्धिदायो नमः स्वाहा ओम बलदायो नमः स्वाहा ओम अंधायो नमः स्वाहा ओम चिंतामन्यो नमः स्वाहा ओम अचिंत्यायो नमः स्वाहा ओम चिंत्यायो नमः स्वाहा ओम चिदात्मिकायो नमः स्वाहा ओम सत्यायो नमः स्वाहा ओम प्रजावत्यो नमः स्वाहा ओम पूर्णायो नमः स्वाहा ओम कल्प वृक्ष स्वरूपिण्यो नमः स्वाहा ओम श्री हरि भक्ति प्रदायो नमः स्वाहा ओम श्री हरि सानिध्य कारणियो नमः स्वाहा। इस प्रकार से गौ माँ से सुख समृद्धि निरोगी जीवन और ऐश्वर्यता के लिए 109 वरदान मांगने का प्रयास किया और इसी के साथ जो है आहुतियाँ प्रदान की। इस प्रकार से यह आहुति पूर्ण होती है। अब अंत में यह सारा कुछ जिस शरीर के लिए है उस शरीर को संचालित करने में लगी हुई ऊर्जा, विष्णु ऊर्जा, जिसे हम विष्णु नमस्कार के साथ करें। इसी के साथ जो है आरती जला लें। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी हृदयनन्दनं वन्दे विष्णु भवसहारं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, धरती माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। जय हो जय हो जय हो। सभी का कल्याण हो, विश्व रोग मुक्त हो। इस प्रकार पंच महाभूत साधना या पूजा जो भी कह लें, यह पूर्ण हुआ। और अब इसके साथ संपूर्ण सृष्टि को हम नमस्कार करें। नमस्कार करने के लिए सनातन धर्म में जो विधा है कि हम सुखासन में बैठकर दोनों हाथों को ऊंचा करें और श्वास छोड़ते हुए नीचे झुक जाएं। कोशिश करें नाक भूमि से स्पर्श हो जाए, न भी स्पर्श हो तब भी कोई मुश्किल नहीं है। कोशिश करें और धीरे 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 फेफड़े की सभी वायु को निकाल दें। फेफड़ा जब वायु मुक्त हो जाए तब कुछ क्षण के लिए आप उस मुद्रा में रहें और धीरे धीरे श्वास लेते हुए उठ जाएं। ये क्रिया पूर्ण हुई और इसके बाद जो जल कपूर और तुलसी दल के साथ रखा है, यह तीर्थ के रूप में परिवर्तित हो गया। इस जल में सभी प्रकार की ऊर्जाएं आ गई। इसे प्रसाद के रूप में आप दे दें। जो भी जैविक वस्तुएं रखी गई है इसे प्रसाद के रूप में दे दें और अंत में पंचगव्य लोगों को लो, सभी को वितरण कर दो। ये कुंभ दे दो। पहले वो कर दो, उसके बाद पंचगव्य।
अब आप चाहें तो इससे संबंधित जो कुछ भी सवाल हैं आपके मन में, आप कमेंट में लिखें, उत्तर देने की कोशिश करूँगा। आए कुछ प्रश्न? हाँ, प्रश्न आए हैं, इससे रिलेटेड नहीं है। पूछ रहे हैं पैरालिसिस का उपाय बताएं गुरु जी। पैरालिसिस पंचगव्य चिकित्सा में पूर्णतः साध्य होने वाला रोग है। पैरालिसिस होने के बाद इसमें गाय का पुराना घृत, जो कम से कम 25-30 साल पुराना है, इसे अगर हम शरीर के प्रभावित अंगों के मर्म बिंदु पर मसाज करें तो यह बीमारी पूर्णतः ठीक होती है। पिछले 10 वर्षों में 100 से ज़्यादा ऐसे पक्षाघात के मरीज हैं जो इस क्रिया में ठीक हुए हैं। इसके अलावा शतावरी मिला हुआ गौमूत्र अर्क और उसकी घनवटी दी जाती है। इसकी मात्रा आदि जो है वो आयु के हिसाब से जब सिद्धों को निर्धारित करने का ज्ञान दिया हुआ है, आप उनसे संपर्क में आकर के और इसकी चिकित्सा कर सकते हो। आगे गुरुजी, गोमाता पास में नहीं है, गव्य फ्रेश नहीं मिलेगा तो अल्टरनेट बताएं। इसका कोई देखो विकल्प नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में गाय का गोमय ही शुद्ध भूमि तत्व है, गाय का गोमूत्र ही शुद्ध वायु तत्व है, गाय का दूध क्षीर ही शुद्ध जल तत्व है। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। गायत्री मंत्र का उच्चारण कितनी बार करना है? आप जितनी ज़्यादा बार करेंगे गायत्री छंद का उच्चारण, उतना ही ज़्यादा हमारे शरीर में ब्रह्म ऊर्जा जागृत होगी। इस क्रिया में हम कम से कम 5 बार करने का नियम हम लोगों ने रखा है। गुरुजी प्रणाम, इस वायुमंडल में क्या प्रभाव होता है महाभूत पूजा से? इस महाभूत पूजा से जो ये जो धुआं आप देख रहे हो, आप इसमें से जो निकल रही है, ये वायुमंडल में जाकर प्रोपेलिन ऑक्साइड नाम का गैस बनाती है और इसी के संपर्क में बादल आने से बारिश होती है। तो जिस स्थान पर इस महाभूत पूजा को आप विधि विधान के साथ करेंगे और अगर नियमित रूप से यह जो है धुआं उड़ करके आकाश में अगर जाएगा तो उस क्षेत्र से गुजरने वाला जो भी मेघ है वो बरस करके ही जाएगा। और इसकी क्रिया हमने पिछले कई वर्षों से की है। जिस स्थान पर 365 दिन यह क्रिया होती है, उस स्थान के ऊपर से जब भी कोई मेघ गुजरता है तो बरस करके ही गुजरता है। इसका हमने प्रयोग करके देखा है। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होती थी, वहाँ भी इस क्रिया को हमने करवाया है। तो उसके ऊपर से आकाश से गुजरने वाला मेघ बरस करके ही गुजरता है। तो वर्षा लाने के लिए और विशेषकर समवृष्टि लाने के लिए यह क्रिया बहुत ही उपयोगी है। गुरुजी, पंच महाभूत पूजा में प्रसाद के रूप में क्या क्या ले सकते हैं? प्रसाद के रूप में आप कोई भी जैविक चीज ले सकते हो, जैविक वस्तु। सबसे अच्छा है कि जैविक गुड़ आप रखें, जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यदि आप इसमें फल रखना चाहते हैं तो जैविक केला रख सकते हैं। जैविक फल में आप अनार रख सकते हैं, जो ब्रह्म ऊर्जा का द्योतक है। केला विष्णु ऊर्जा का द्योतक है।
और शिव ऊर्जा का द्योतक बेल है, तो बेल के फल को भी आप रख सकते हो इसमें। नारियल को भी रख सकते हैं आप, नारियल में बहुत ज़्यादा शिव ऊर्जा है। गुरुजी, पंच महाभूत पूजा और अग्निहोत्र में क्या अंतर है? अग्निहोत्र से भी यही लाभ मिल सकता है क्या? देखो, क्रियाएं तो सब एक ही है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसमें विकृतियां बहुत आ गई है। जैसे कई बार हमने देखा है अग्निहोत्र के दौरान कुछ गलत वस्तुओं का भी होम कर देते हैं, रासायनिक चीज़ों का भी लोग होम कर देते हैं, उसमें फल का होम कर देते हैं, मिठाई का होम कर देते हैं, ऐसी कई चीज़ें कर देते हैं। ये क्रियाएं नहीं करना चाहिए। गाय का गोबर, सूखा हुआ गोबर का कंडा और घृत, ये दोनों मिलकर के ही प्रोपिलीन ऑक्साइड गैस बनाते हैं, इसलिए मूलतः ये दोनों की ही इसमें क्रिया है। शेष जो कुछ भी है, आडंबर तो नहीं कह सकते, लेकिन विषय को नहीं समझने के कारण इसमें कई चीज़ लोग मिश्रित कर देते हैं। इसमें अच्छा है कि आप गोमय और गोघृत, इन दोनों के मिश्रण से अग्नि प्रज्वलित करने की कोशिश करें। यही प्रोपिलीन ऑक्साइड नाम का गैस बनाएगा, जो समवृष्टि का कारक है। गुरुजी, पूजा का समय क्या रहना चाहिए? पूजा का समय सूर्यास्त से आधा घंटा पहले और सूर्योदय के आधे घंटे के अंदर कर लेना चाहिए। इसमें जो हम श्वास की क्रिया करते हैं, स्वर जो उत्पन्न करते हैं, ये केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही उत्पन्न की जा सकती है। सूर्योदय के आधे घंटे के बाद इस क्रिया को नहीं कर सकते। और कंडे के साथ गोघृत की मात्रा कितनी होनी चाहिए? आपके पास जितना भी उपलब्ध है आप गोघृत डाल सकते हो। आप जैसे हमने यहाँ पर सामान्य रूप से बना हुआ एक कंडा लिया है, तो उस कंडे के लिए 1 चम्मच घृत काफ़ी है। कोरोना के लिए कैसे फायदेमंद है? कोरोना का जो आक्रमण है हमारे शरीर में, वो शिव ऊर्जा की कमी के कारण होता है। जब हमारे शरीर में शिव ऊर्जा की कमी हो जाएगी, तब कोरोना ही नहीं, किसी भी तरह का वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करके उपद्रव कर सकता है। किसी भी तरह के परजीवी, जो बाहर के जो जीव हैं, बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं, उनको शरीर में रोकने की क्रिया शिव ऊर्जा करती है। तो यदि हमारे शरीर में शिव ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में हो, संतुलित हो, तो निश्चित रूप से कोई भी वायरस हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। इस पूरे पंचमहाभूत साधना पूजा में हमने तीनों ऊर्जाओं को जागृत करने का प्रयास किया है, ब्रह्म ऊर्जा, शिव ऊर्जा और विष्णु ऊर्जा, और 5 महाभूतों को यहाँ पर रखा है। तो निश्चित रूप से कोई भी वायरस, अगर वो ब्रह्म ऊर्जा से संबंधित है, विष्णु ऊर्जा से संबंधित है या शिव ऊर्जा से संबंधित है, वो बिल्कुल नहीं आ सकता है। ये तीनों शक्तियाँ, तीनों ऊर्जाएं जब हमारे शरीर में जागृत हो जाती है, तो कोरोना ही नहीं, आने वाले दिनों में भी और अगर कोई भी वायरस उत्पन्न होता है, उससे भी यह साधना हमारी रक्षा करेगा। गुरुजी, आहुति में क्या होता है सामग्री? आहुति में सामग्री आप गोबर के चूर्ण को रख सकते हैं, या अगर आपको लकड़ी डालना है तो एक वनस्पति हमारे भारत में होती है जिसका नाम है अपामार्ग। तो अपामार्ग के सूखी लकड़ियों को भी डाल सकते हो। अपामार्ग उपलब्ध नहीं है तो सीधा आप गोबर के छोटे छोटे गोलियां बना लें या चूर्ण कर लें और उस चूर्ण से आहुति दे सकते हैं। साथ में घृत से भी आहुति दे सकते हैं। गुरुजी, एक रोगी है, उनका उम्र 66 वर्ष है, उनको लगभग 20 दिनों से नमक का स्वाद नहीं लग रहा है, बाकी सब स्वाद लगता है, साथ में उनको दमा भी है, कृपया उपाय बताएं। देखो, दमा जो है वो फेफड़े का रोग है, और फेफड़े को संतुलित करने के लिए गाय का भस्म है। तो गाय का भस्म डालकर पानी पिए। और पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान में एक औषध है जिसका नाम है गौमूत्र आशव। तो इस गौमूत्र आशव का सेवन करें। स्वाद जो चला गया है, तो ये जीभ से संबंधित उत्पन्न रोग है, इसके लिए आप तुलसी युक्त गौमूत्र अर्क का सेवन करें और त्रिफला युक्त घनवटी का सेवन करें।
गुरुजी, एक रोगी है, उनका वय 64 ईयर्स है। 10 से 12 वर्ष पहले गिर गए थे, लेकिन शरीर मजबूत था तो दर्द का गौर नहीं हुआ। अब लगभग 1 वर्ष से दर्द हो रहा है, कंधों में और हाथों में। पिछले 6 माह से ज़्यादा हो रहा है। एलोपैथी से कोई फर्क नहीं पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार 70 to 80% ब्लॉकेज है। अभी मैंने गोबर गोमूत्र को गर्म करके पट्टी बांधने को बोला गया है। इसके अलावा क्या इलाज कर सकते हैं? देखो, इसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो है इंटेक पंचगव्य भी लेना चाहिए। इसमें 2 वनस्पतियाँ आपके लिए उपयोगी होगा। शतावरी युक्त गौमूत्र अर्क का सेवन करें और अर्जुन युक्त गौमूत्र अर्क का सेवन करें, और दोनों की घनवटियाँ लें। और गोबर रस से और सरसों के तेल से के मिश्रण से बना हुआ जो दर्द निवारण तेल है पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान में, उससे कम से कम शरीर में 2 बार उनकी मसाज करें। नाक में घृत का भी उपयोग कर सकते हैं, इससे भी लाभ मिलेगा। गायत्री उच्चारण करते वक्त श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया एक बार फिर से बताएं। तो अभी सूरज उदय हो गया है, इसलिए अभी मैं उस क्रिया को नहीं कर सकता हूँ। आप जो रिकॉर्डिंग है उसको रिप्ले करके आप देख लें। इसमें जो श्वास की जो क्रिया है वो सूर्योदय से पहले ही की जाती है। जितना गायत्री मंत्र है उतना ही महामृत्युंजय जाप का मंत्र उच्चारण किया जाता है क्या? नहीं, गायत्री से कम 2 गुना ज़्यादा महामृत्युंजय का करना चाहिए। इसलिए साधना में सामान्यतः 5 बार गायत्री छंद और 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप रखा है। गुरुजी, अग्निहोत्र में बहुत सारे औषधियों का उपयोग कर सकते हैं क्या, जैसे लौंग, जटामासी, ब्राह्मी या अन्य? इस क्रिया में केवल जो है इतनी चीज़ें आप लगा लो: गोबर के सूखे कंडे, गौघृत, और यदि आपके पास जैविक चावल का दाना है, चावल का दाना पूर्णतः जैविक होना चाहिए, तो इसे घृत में मिला करके आहुति में डाल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। अगर लकड़ी डालना है तो केवल अपाम मार्ग की सूखी लकड़ियाँ डाली जा सकती हैं। एक माता जी है, उनकी उम्र 55 वर्ष है। उनको लगभग 3 वर्ष से सूखी खांसी है, कभी कभी बलगम आता है। गुरुजी, कृपया उपाय बताएं। इसमें आप मुलेठी युक्त गौमूत्र अर्क और उससे बनी हुई घनवटियों का सेवन कर सकती हैं। गुरुजी, भस्म के पानी में कितनी मात्रा होनी चाहिए? मतलब 1 लीटर जल में 20 ग्राम भस्म को घोल दें, कम से कम 20 मिनट छोड़ दें। 20 मिनट छोड़ने के बाद भस्म नीचे बैठ जाएगा। ऊपर के जल को निथार कर पीने के काम में ले सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। अपामार लकड़ी से क्या फायदा होता है? दुनिया में देखो, अपामार्ग एक ऐसी वनस्पति है जिसके जलने से कभी भी दूषित वायु उत्पन्न नहीं होता। इसके जलने से ऑक्सीजन ही उत्पन्न होता है। इसीलिए यज्ञ की क्रिया में केवल अपामार्ग की लकड़ियों का ही उपयोग करना चाहिए। और भी कोई यदि प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। कितना समय और है? 6:06 6:06। तो आप सभी को धन्यवाद, और अगले साल फिर अगले सप्ताह फिर कोई नया विषय लेकर के प्रातः 5 बजे उपस्थित रहेंगे। आप सभी लोग इसे देखें, और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि इसको और भी हम बेहतर कर सकें। आप सभी का धन्यवाद।